Hello everyone. Today we start chemistry class 9 chapter 1. तो उससे पहले how are you all? I think you all are fine. I am also fine. So today we start class 9 chemistry lesson 1. Okay. So let's start. तो chapter chemistry chapter 1 name is matters in our surrounding. तो इस चैप्टर के बारे में हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे. ओके. इसमें जो जितना भी टॉपिक है हम सब टॉपिक को क्लियर करेंगे. देखते हैं क्या क्या टॉपिक है उसमें से. एक तो इंट्रोडक्शन है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है, डिफ्यूज़न है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है. उसमें से सब टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हाफ स्पेस बिटवीन देम. Particles of matter attract each others because of force of attraction. State of matter, solid state, liquid state, gaseous state. Change of state of matter, effect of temperature, latent heat of fusion, latent heat of vaporizations, effect of change of pressures, evaporations, factors affecting the rate of evaporations, evaporation cause cooling, plasma, and another one and last one is Bose-Einstein state. ओके, इसको हम फिफ्थ स्टेट भी बोलते हैं. तो चलो हम वन बाय वन इस टॉपिक को क्लियर करते हैं. पहले हम जाएंगे इंट्रोडक्शन के तरफ. इंट्रोडक्शन क्या होता है एक टॉपिक का? एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन ये होता है जहाँ पर हम उस टॉपिक के बारे में ओवरऑल बेसिक कुछ आइडिया ले सकते हैं. चलो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है. हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे मैटर एंड एलिमेंट्स है जिसे हम बहुत सारे वे में देखते हैं. जैसे कि पंच तत्व होता है. पंच तत्व हम किसको बोलते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर को. समझ में आ गया? तो ये पंच तत्व भी मैटर ही है, बेसिक एलिमेंट भी है. ओके. तो देखते हैं इसमें से क्या दिया है. न सिंसियरली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर नेचर्स. Early Indian philosopher classified matter into 5 basic elements. The Panchatattva. The Panchatattva is air, earth, fire, sky and water. According to them, living as well as non-living things are made of this element. हमें भी पता है लिविंग थिंग्स मैटर से बने हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी मैटर से बने हैं. समझ में आ गया? तो नाउ ए डेज scientists evolves two type classifications of matters. One is physical properties and chemical nature. In through these two types of classifications, scientists evolves if large number and large number of matter. Okay, then we go for another topic. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. नेचर मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है देखते हैं. मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स. मैटर कैसे बनता है? पार्टिकल्स को लेकर मैटर बनता है. All matter constitute a very small particles. The small particles are called atoms. सारे जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स से बनते हैं और वो स्मॉल पार्टिकल्स को हम आटम बोलते हैं. समझ में आ गया? जितने भी मैटर हमारे सराउंडिंग में है वो सारे एटम से ही बने हैं. समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं हम. नेक्स्ट में है उसका दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज और सिंपल माइक्रोस्कोप. ये जो पार्टिकल्स है मैटर का वो बहुत छोटे हैं तो इसलिए हम अपने खाली आँख में नहीं देख सकते. उसको देखने के लिए हमें सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है. समझ में आ गया? ये था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट क्या है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग as they possess kinetic energy. Every particles of matters are continuously moving as they possess kinetic energy. All the particles of matter possess
kinetic energy. With the increase of temperatures, kinetic energy of particles also increases. So particles move faster. When we increase the temperature of the particles of the matter, then the kinetic energy also increases. So particles of the matters move faster. Okay? Then we go through next topic, that is diffusions. So before we discuss the diffusion, we discuss Brownian motion. So one question arises in our mind, what is Brownian motion? Brownian motion क्या है? The zigzag or random path traveled by the particles of matter is called Brownian motion. We all know that the particles of matter continuously moving. It is the physical nature of that matters. So when the path is zigzag or random, that part is called, and that the particles is called, that matter is called Brownian motions. Okay, that matter is possessed Brownian motions. Okay, the intermixing of particles of two different type of matter on their own is called diffusion. When we intermix two or more different type of matter on their own is called diffusion. The rate of diffusion increases on increasing the temperature of diffusing substance. Okay, वे जो rate of diffusion है वो increase करता है, कब इंक्रीज करता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है. समझ में आ गया? हम दो से ज़्यादा मैटर को लेकर इंटरमिक्सिंग करके जो बनता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न हो गया. और डिफ्यूज़न कब इंक्रीज होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तब डिफ्यूज़न इंक्रीज होता है. इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस. इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेट ऑफ मैटर विच इज सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस. देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हमारा जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहले हम सब पॉइंट देखेंगे. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो जितने भी पार्टिकल्स है वो अपने तरफ उनका स्पेस होता है, मतलब उनका जो मैटर से उनका जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है उनमें से होता है. जैसे हमें पता चल गया हमें नींबू का पानी पीना है. हम सब पीते हैं. उसमें हम सॉल्ट ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, नींबू ऐड करते हैं पानी में. उससे जाकर तो हम नींबू का पानी पीते हैं. कैसे वो ऐड हो गया? कैसे वो सॉल्ट उसमें डिजल्व हो गया? कैसे वो शुगर उसमें डिजल्व हो गया? ये कैसे होता है? वे वैसे होता है जैसे कि लिक्विड और वाटर में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, उसमें कुछ स्पेस है, इसीलिए तो वो डिजल्व हो गया उसमें. समझ में आ गया? गैस कैन बी कंप्रेस्ड ए लॉट बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स. गैस बहुत कंप्रेस हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारा इंटरमोलिकुलर स्पेस है. उसका मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है. उसका आइटम और एटम के तरफ बहुत ज़्यादा स्पेस है भीतर. समझ में आ गया? When sugar is dissolved in water, the particles of sugar disappear in water. This happens because particles of sugar get adjusted in the space between the particles of water. Okay. Additionally, you will notice that there is no rise of water level takes place when 1 or 2 teaspoon of sugar is added in a glass of water. This is because sugar particles get adjusted in the space between the particles of water and no rise in the water level comes in result. मैंने बोल दिया हमें नींबू पानी पीना है तो उसमें शुगर ऐड करना है, नमक ऐड करना है, पर वो जो पानी है हम 1 लीटर ले लिए थे, वो 1 लीटर 200 ग्राम हो गया? नहीं, वो 1 लीटर ही रहा. उसका लेवल क्या होता है? क्रॉस नहीं करता है. वो जितना है उतना रहता है, पर उसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसमें डिजल्व हो गया. समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं.
नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है, उनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखते हैं वो क्या है। Force of attraction between particles of matter keeps the particles bonded together. अगर एक पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो वो क्या होगा, बिखर जाएगा, वो पार्टिकल ही नहीं बचेगा। तो उसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जो कि मैटर के जो पार्टिकल्स है उसको बॉन्डेड करके रखता है। समझ में आ गया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज ग्रेटेस्ट, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज मॉडरेट एंड द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज लोएस्ट। समझ में आ गया। किस में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉलिड में, और मॉडरेट किस में है, लिक्विड में, और सबसे लो किस में है, गैस में है। तो इसीलिए तो हम सॉलिड में हाथ नहीं फिरा सकते पर लिक्विड में हाथ फिरा सकते हैं, और गैस में तो हम रहते हैं, गैस में भी हाथ फिरा सकते हैं। सॉलिड में क्यों नहीं फिरा सकते हाथ, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज ग्रेटेस्ट। ओके, बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स greatest, but in liquid it is moderate and between the gas it is lowest. Okay, because of the lowest force of attraction between the particles of gas, we can move our hand through air easily. To move our hand in liquid such as water, we have to apply some force, but from solid such as wood we cannot move our hand. Okay, this is because the force of attraction between the particles of gas is almost negligible. In liquid, the force of attraction is moderate, but it is greatest in solids. Okay, you all understand. I hope you all understand. If any query and if any questions about this chapter, please comment below and like and subscribe my channel. Okay, then we go through next. The force of attraction between particles of solid, liquid and gas can be arranged in decreasing order. Okay, solid का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद liquid का आता है, उसके बाद gas का आता है। अभी हम देखते हैं उसका जो स्टेट है, कितने स्टेट है सॉलिड का। ओके, तो कितने स्टेट है मैटर का, जो मैटर का कितने स्टेट है उसमें हम देखते हैं। हमें तो पता है मैटर का 3 स्टेट होते हैं, देखते हैं क्या क्या स्टेट है वो। पहले आ गया सॉलिड स्टेट। 3 स्टेट होता है, वन इज सॉलिड, अनदर इज लिक्विड एंड लास्ट इज गैस। ओके, तो अभी हम देखते हैं सॉलिड स्टेट क्या है। सॉलिड स्टेट क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम देखते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। अभी मैंने बोला था जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए तो वो बॉन्डेड टुगेदर रहते हैं, मतलब बाइंड होके रहते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग। उसके बाद में मैंने बोला था मैटर का सॉलिड स्टेट में force of attraction in the particles and in the intermolecular space is very strong. Okay, the particles in a solid are closely packed. Solid maintain their space even when they are subjected to external force, that is they are rigid. जब हम कुछ external force अप्लाई करते हैं सॉलिड स्टेट में, सॉलिड्स के ऊपर, वो तब भी अपना शेप को मेंटेन करके रखता है, इसलिए तो वो रिजिड है। ओके, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, अगर हम कंप्रेस करेंगे तो वो बिखर जाएगा। समझ में आ गया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी लेस एंड सो सॉलिड्स हैव एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, देयरफॉर सॉलिड हैव ए फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। ओके, हमारे जो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस होता है। समझ में आ गया। तो इसलिए वो एक ऑर्डरली अरेंज होके रहते हैं, तो उनका एक फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम होता है। समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं लिक्विड स्टेट। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, उनका जो स्पेस होता है थोड़ा स्लाइटली मोर होता है एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट, बट स्टिल वेरी लेस एज कंपेयर टू द
गैसेस, पर गैसेस से बहुत ज़्यादा कम होता है. द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड कैन स्लीप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर. वो क्या होता है, वो स्लीप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर रहते हैं, मतलब पार्टिकल्स के ऊपर एक पार्टिकल्स रहता है, वो कंबाइन होके रहते हैं, पर उनमें से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है. और क्या होता है, मतलब पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स इन ए फिक्स पोजिशंस. ओके, वो क्या होता है, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो तो बाइंड करके रखता है, पर उनको सही तरह का एक शेप नहीं दे सकता. मतलब लिक्विड का कुछ शेप होता है क्या, नहीं होता है. तो लिक्विड का शेप नहीं होता है, फिक्स शेप कुछ भी नहीं होता है, पर उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. तो वो दे दिया है यहाँ पर इस पॉइंट में, लिक्विड डू नॉट हैव ए फिक्स शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर फ्लोट. The kinetic energy of the particles is more than that of the solid. Thus, liquid have a disorderly arrangement of particles compared to the solids. समझ में आ गया. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे. गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट क्या है, मैंने बोल दिया. सॉलिड स्टेट चला गया जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी लेस होता है, इसलिए उसका शेप होता है और वॉल्यूम होता है. लिक्विड स्टेट में क्या होता है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा एज कंपेयर टू सॉलिड कम होता है, और उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड बहुत ज़्यादा होता है. पर गैसियस स्टेट में क्या होता है, इस पार्टिकल्स का इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है. ओके, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है. समझ में आ गया. द पार्टिकल्स आर मच फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड. They have a very disorderly arrangement of particles compared to the solid and liquid. The force of attraction between the particles is negligible, hence the particles of gas move freely in the directions gases thus can mix or diffuse into other gas. Okay, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो अदर गैस से भी मिक्स हो जाते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसलिए तो वो कंटिन्यूसली मूविंग होते रहते हैं. काइनेटिक एनर्जी उनके पास बहुत ज़्यादा है. दे मूव विथ हाई स्पीड इन द ऑल डायरेक्शन एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर. Okay, gas neither have a definite shapes nor a definite volume. They fill up the container completely. You understand what is the gaseous state? Then you go through another topic. Change of state of matters. तो what is change of state of matter? देखते हैं. The phenomenon of change from one state of matter to another and then back to the original state is called the interconversion of state of matter. क्या होगा, हम एक चेंज करेंगे, एक मैटर का स्टेट चेंज करेंगे, मतलब सॉलिड है उसको लिक्विड में लाएंगे, लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे. ये जो कन्वर्ट होता है फिर से उसी जो सॉलिड था लिक्विड हो गया, फिर से उसको सॉलिड में ले आएंगे, जो लिक्विड था गैस हो गया, फिर से उसको लिक्विड में ले जाएंगे. ये वाला जो मैटर प्रोसेस चलता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर्स and interconversion of state of matters. Okay, you all are understand. If any query about these topics and this chapter, please comment below. Please subscribe, like and share our channel Crunch of Science. Okay, so अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है, इस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या है. मैटर कैन चेंज स्टेट. वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर. मैंने बोला था सॉलिड एज ए आइस, लिक्विड एज वाटर, गैस एज वाटर वेपर. तो एक वाटर 3 स्टेट में रह सकता है, एज ए सॉलिड रह सकता है, एज लिक्विड रह सकता है, एंड एज गैस भी रह सकता है.
तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैटर के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है टेम्परेचर, देखेंगे। On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particles increases, which overcome the force of attraction between the particles, thereby solid melts and it's converted to a liquid। मैंने बोला था solid में काइनेटिक एनर्जी लेस होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत लेस होता है। जब हम किस सॉलिड का टेम्परेचर क्या करेंगे, हाइक करेंगे, इंक्रीजिंग करेंगे, तो वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पर लिक्विड स्टेट में तो काइनेटिक एनर्जी होता है, इसीलिए तो वो क्या होता है, एज कंपेयर टू द सॉलिड, लिक्विड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। तो वो क्या करता है, उनका जो पार्टिकल्स होता है वो कंटिन्यूसली मूविंग पोजिशन में रहता है। तो वो क्या होता है, वो सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं, द टेम्परेचर्स एट व्हिच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर में एक सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज 273.16 केल्विन। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion। ओके, जब एक प्रोसेस होता है जो कि मेल्टिंग ऑफ प्रोसेस होता है, जो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है, दैट इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, that state known as fusions। ओके, समझ में आ गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो होता है, जब हम किसी चीज़ को टेम्परेचर देते हैं वो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, सॉलिड मेल्ट हो जाता है, और लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, लैटेंट हीट। ये भी लैटेंट हीट आ गया। हमें एक बात तो दिमाग में रखना है, लैटेंट हीट जो है वो हिडन हीट ही होता है। ओके, जो हीट हिडन होके काम करता है उसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं। तो व्हाट इज लैटेंट हीट? द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज लैटेंट हीट। जो एक हिडन हीट एक मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर लेता है, हम उसको बोलते हैं लैटेंट हीट। सिंस द हीट एनर्जी इज हिडन इन द वर्क ऑफ मैटर्स, इट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। समझ में आ गया लैटेंट हीट क्या है? आपको दिमाग में ये रख के चलना है, लैटेंट हीट है जो हिडन हीट वही है। समझ में आ गया? छुपा हुआ जो हीट है उसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, latent heat of fusion। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। ओके, फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। अभी हम देखते हैं latent heat of fusion क्या है। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम उसको क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। समझ में आ गया? द टेम्परेचर एट व्हिच ए लिक्विड स्टेट बॉइलिंग, जब एक लिक्विड बॉइलिंग स्टेट कर देता है, मतलब बॉइलिंग स्टेट कर देता है, तब हम उसको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको, वो लिक्विड का हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। जब एक लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है हम उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। Boiling is a work of phenomena. Particles from the work of the liquid gain energy to change the gaseous state. For example, boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मैंने कन्वर्ट किया है 100 डिग्री सेल्सियस को कितने केल्विन में? 373 डिग्री
केल्विन। जितना भी आपको सेल्सियस दिया होगा उसको आप किससे ऐड करना, 273 से ऐड करके आप बना सकते हो क्या, आप बना सकते हो आपका केल्विन। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या टॉपिक है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या टॉपिक है, हमने पहले देखा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स, अभी हम देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। जब अब मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, आपको वेपोराइजेशन वर्ड सुन के याद आ रहा है कि वेपोरेशन क्या होगा, जब वेपर बन जाए? नहीं, आपने ठीक सोचा है। जब एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। समझ में आ गया। तो देखते हैं वेपोराइजेशन क्या है और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस at atmospheric pressure at its boiling point is known as the latent heat of vaporization. The heat energy required to convert 1 kilogram of liquid, जब 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं latent heat of vaporization. Okay, the process in which a gas on coolings turn into liquid at specific temperature is called condensations or liquefactions. ओके, क्या बोलते हैं हम उसको, कंडेंसेशंस एंड लिक्विफैक्शंस। जब वो गैस वेपर होके चला गया और कूल होके एटमॉस्फेयर में एट स्पेसिफिक टेम्परेचर में वो कूल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। Formation of clouds is due to the condensation of water vapor from the earth's surface. Okay, the change of state of substance directly form a solid to gas. Okay, एक चेंज होता है जब एक सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड स्टेट को नहीं जाता, वो गैस को चला जाता है, उसको उस जो प्रोसेस में होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, sublimation. The change of state of the substance directly from solid to gas without changing into the liquid state or vice versa, it is called sublimation. समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं उसके बाद हमारा क्या है। The temperature at which the state of a substance changes from liquid to a solid is called freezing point. जब एक लिक्विड को सॉलिड से चेंज होता है हम उसको क्या बोलते हैं, freezing point बोलते हैं of that substances. Okay, when a solid melts its temperature remains the same because heat gets used of in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. It is considered that it gets hidden into the content of beakers and it's known as the latent heat. समझ में आ गया। वाटर वेपर at 373 Kelvin have more energy than the water at the same temperature because particles in stream have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. समझ में आ गया। मैंने बोला था जो वाटर वेपर है उसके पास मोर एनर्जी है, ओके, देन द वाटर ऑफ द सेम स्ट्रीम। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अभी हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। क्या है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर? Gases can be liquefied by applying pressure and reducing the temperature. When a high pressure is applied to a gas, it gets compressed, and if the temperature is lower, the gas is liquefied. हमारा गैस जो है वो लिक्विफाइड बन जाता है कब, हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं उसमें जो प्रेशर होता है एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो लिक्विफाइड हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन ए हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू द गैस इट कंप्रेस्ड एंड इफ द टेम्परेचर इज लोअर द गैस इज लिक्विफाइड। समझ में आ गया। Solid carbon dioxide gets converted directly to the gaseous state on decrease the pressure to atmosphere without coming into liquid state. This is reason that solid carbon dioxide is known as the
ड्राई आइस, जो प्रेशर अप्लाई करके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है, और उसको इसलिए हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है इवापोरेशन और वेपराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट at any temperatures below its boiling point is called evaporation और vaporization। एक लिक्विड क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एट एनी टेम्परेचर में क्या होता है, बॉयल हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम इवापोरेशन और वेपराइजेशन बोलते हैं। इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना। समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। जब लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीजिंग होगा, उसका रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विथ an increase in temperature। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। ओके, डिक्रीज द ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। हमें पता है हमारे जो क्लॉथेस, वेट क्लॉथेस होते हैं, वो जब ह्यूमिड ज़्यादा होता है वो सूखते नहीं है। क्यों नहीं सूखते? तब तो एटमॉस्फेयर में वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, तो क्या होता है उसमें इवापोरेशन रेट जो वो स्लो हो जाता है। जब वो डिक्रीज हो जाएगा तो इवापोरेशन रेट इंक्रीज होगा, तो डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशंस। क्या होगा, जब विंड स्पीड इंक्रीज होगा तब हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन कैसे कूलिंग करता है। The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold। जो evaporation में जो वाटर evaporate हो गया है, क्या करता है, हमारा सराउंडिंग उसे क्या करता है, ऑब्जर्व करने के लिए सोचता है, तो वो क्या करता है, हमारे सराउंडिंग को कोल्ड बना रखता है। लेटली साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट 5 स्टेट ऑफ मैटर्स और 5 फेजेस ऑफ मैटर। दीज आर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, अभी साइंटिस्ट ने क्या किया है, हमारे जो मैटर है उसका 5 फेजेस और 5 स्टेट डिस्कवर किया है। वन इज सॉलिड, अनदर इज लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा एंड द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देन हम देखते हैं और क्या क्या है, जाएंगे प्लाज्मा की तरफ। प्लाज्मा क्या है, जो फोर्थ स्टेट है हमारे जो मैटर का, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड द नियन साइन बॉल्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है। Indian physicist Satyendra Nath Bose made the study regarding the fifth state of matter. Bose, based on his study, Albert Einstein predicted a fifth state of matter called Bose-Einstein condensate. Okay, the Bose-Einstein condensate or BEC is formed by cooling a gas extremely low density to super low temperature। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ मैटर खत्म हो गया, ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंस खत्म हो गया। अभी हम देखते हैं इसमें से क्या और क्या क्या है। सम इम्पोर्टेंट मेजरमेंट हम देखेंगे, किसका एसआई यूनिट क्या है ये सब देखेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। आप सबको पता है मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज
लीटर, ओके। एल जो हम एल लिखते हैं। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर्स। ये सब आपका हो गया। सम स्पेशल यूनिट, इसको आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो ये आपका भी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है हमारा इस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल क्रंच ऑफ साइंस। मैं आपके साथ हर रोज़ रहती हूँ, हर रोज़ बना रहूँगी। आप अगर आपको कुछ इस चैप्टर में क्वेरी है अबाउट दिस चैप्टर, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अभी मैं रखती हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखा होगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।